السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کی فرمائش پر میں آج پھر کافی دنوں کے بعد حاضر ہوا ہوں کچھ اہم باتیں لے کر کے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے پاس ایک ہمارا دوست نے میسج کیا تھا کہ آفتاب بھائی آپ یہاں سے چلے گئے ہیں، گاؤں میں سونا مچا ہوا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے۔ آپ ہوتے تھے مسجد میں اعلان کرتے تھے، اعلان کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے، ہم اٹھ جاتے تھے، روزہ رکھنے کے لیے سحری کرتے تھے، لیکن آج آپ ہم سے کافی دور چلے گئے، آپ کی کمی کھل رہی ہے۔ میرے دوست بھائیوں بہنوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں کل مسجد میں اعلان کے ذریعے سے آپ کو اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میں باہر ہوں تو یوٹیوب کے ذریعے سے میں اپنا پیغام تم تک پہنچاؤں گا۔ اور مجھے امید ہے آپ پہلے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ پھر میں شروع کرتا ہوں۔ میرے دوستو، یہ جو رمضان المبارک کا دوسرا اسرہ چل رہا ہے، پہلا اسرہ تو گزر چکا ہے، دوسرا اسرہ چل رہا ہے۔ اس اسرے میں ایک طبقہ نوجوان کا، پڑھا لکھا طبقہ، وہ روزانہ رب کے سامنے دعائیں کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، اے میرے رب میری بخشش کر دے، میری بخشش عطا فرما۔ اور ایک نوجوان طبقہ جو پڑھا لکھا بھی ہے، حرام حلال چیز جانتا بھی ہے، فرض سنت جانتا بھی ہے، اور وہی نوجوان طبقہ بیماری کے نام پر بہانہ بنا کر کے روزے کو ترک کرتا ہے۔ میرے دوستو، میں بتاتا چلوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑے ہی نصیب والوں کو ملتا ہے، خوش قسمت والوں کو ملتا ہے۔ آپ سوچئے، پچھلے رمضان المبارک کے ماہ میں کتنے ہمارے دوست احباب ہمارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، روزہ کھولتے تھے، نعتیں پڑھتے تھے، سلام پڑھتے تھے، اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے، لیکن آج وہ نوجوان ہمارے بیچ میں نہیں ہیں۔ میرے دوستو، تم جو روزہ نہیں رکھتے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اگر اس رمضان المبارک کے ماہ میں اگر تم اپنے رب کو راضی نہیں کر سکے تو آنے والے رمضان المبارک کا مہینہ اگر تمہیں نہ ملا اور اس مہینے کے آنے سے پہلے تمہاری روح تن سے جدا ہو جائے تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو تم کو اپنے رب کی بارگاہ میں بخشوا کر کے جنت میں لے جائے۔ میرے دوستو، میں کل بھی مسجد کے اعلان کے ذریعے سے درس دیتا تھا، آج بھی یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ لوگوں کو درس پہنچا رہا ہوں۔ آپ کا بھائی ہوں، آپ چھوٹا بھائی سمجھ کر کے، بڑا بھائی سمجھ کر کے ہماری باتوں کو تسلیم کریے۔ یہ جو بیماری کا بہانہ بناتے ہیں، اس بیماری کے بہانے کو ترک کریے، روزہ رکھیے، نماز پڑھیے، صدقہ کریے، خیرات دیجیے، زکوٰۃ دیجیے۔ لیکن اور بھی کچھ نوجوان ہیں ہمارے بیچ جو روزہ رکھ کر کے سارا دن پب جی گیم میں اپنے وقت کو بتا دیتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ روزہ بھوک
प्यास का नाम नहीं है रोजा। रोजा आँख का भी है, रोजा नाक का भी है, रोजा मुंह का भी है, रोजा कान का भी है, रोजा पैर का भी है। आँख का रोजा इसलिए कि इन आँखों से आप कोई ऐसी चीज़ न देखें, कोई ऐसी बुरी चीज़ न देखें जिससे आपकी आँखों को तकलीफ़ हो। कान का रोजा, आप कान से कोई ऐसी बुरी बात को न सुने, कोई किसी की गीबत न सुने, किसी की बुराई न सुने, ये तुम्हारे कान का रोजा है। हाथ का रोजा, इन हाथों से कोई आप गलत काम न करें, कोई गंदा काम न करें। पैर का रोजा, इन पैरों से चल करके बुराई की तरफ न जाए, इन सारी चीज़ों का रोजा होता है। और आप रोजा रख करके इन हाथों से फालतू काम करते हैं, इन मुंह से गालियां बकते हैं, इन आँखों से फिल्में देखते हैं, इन कानों से गाने सुनते हैं, तो ये रोजा आपका रोजा नहीं है, बल्कि रोजा जब रोजा होगा, जब रोजा रख करके आप अपनी आँखों को बुराई से बचाएंगे, आप अपने कानों को बुराई की बात सुनने से बचाएंगे, आप अपने मुंह को बुरी बात बोलने से बचाएंगे, आप अपने पैर को बुरे रास्ते पे चलने से बचाएंगे। इसका नाम रोजा है। अपने नफ्स को काबू में रखने का नाम रोजा है। मेरे दोस्तों, आज मैं देखता हूँ कि मेले में लोग सारी सारी रात जग करके बेहयाई की बातें करके और आशिक माशुका वाला खेल रच करके लोगों को मजबूर हो करके मेले में बुला करके न जाने क्या क्या काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जरवल कस्बा के कुछ ऐसे लोग भी हैं कि अभी हाल ही में जरवल कस्बा के सरजमीन पर एक मेला हुआ था। उस मेले में ऐसे ऐसे कव्वाल बुलाए जाते हैं जो वो कव्वाल से अगर पूछ लिया जाए कि कव्वाल साहब क्या आज आपने इशा की नमाज़ पढ़ी है, तो उन कव्वाल का जवाब रहेगा मैंने नहीं पढ़ी है। फजर की नमाज़ पढ़ी है, कव्वाल का जवाब रहेगा मैंने नहीं पढ़ी है। ऐसे ऐसे कव्वाल को बुलाया जाता है अल्लाह के वली की बारगाह में कव्वाली गाने के लिए। अल्लाह के नेक बंदो, तुम सोचो जब वो अल्लाह के वली बाहयात थे, जिंदा थे, तो वो अल्लाह के वली किसी गैर महरम औरत को देखना गवारा नहीं करते थे, किसी बेनमाजी शराबी कबाबी जुआरी को देखना गवारा नहीं करते थे। आज तुम उन्हीं लोगों को मेले में बुलाते हो और दंग मचवाते हो, कव्वालियाँ गवाते हो। क्या उनको तुम फ़ायदा पहुँचा रहे हो? उन्हें तकलीफ़ होती है, उन्हें तकलीफ़ होती है। बहरहाल वजह इन सब में चीज़ों में नहीं पढ़ना। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे। मैं फिर चल जाता हूँ। ए नौजवानों, ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है। इस महीने में IPL मैच भी चल रहा है। मैं देखता हूँ बड़ी ज़ोर शोर से इस मुबारक महीने में सट्टेबाजी हो रही है, जुआ हो रहा है। अल्लाह अकबर। जिस महीने में हमको अल्लाह ने जिंदा रखा है, इस महीने में हम इबादत करें, रियाजत करें, अपने रब को राज़ी कर ले, और उस महीने में तुम जुआ खेलते हो। अल्लाह इन जुआखोरों से हमें बचाए। और इतना ही नहीं, जुआ तो खेलते ही हो, जुआ तो खेलते ही हो। क्रिकेट के मैच में
सट्टे बाजी भी लगाते हो। हमारे बच्चे सट्टे बाजी लगाते हैं, ऐसे ऐसा सट्टा 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार का सट्टा लगाते हैं। उनके माँ बाप से मैं कहना चाहता हूँ, उनके अपने लड़की को रोकें, अपने बच्चों को रोकें, क्रिकेट मैच में सट्टा ना लगाएं, ना लगाने दें, वरना आज ये सट्टा लगा रहे हैं, कल ये ना जाने क्या करेंगे। यानी जो बच्चों का जो पहला मदरसा है, उनके घर ही से उनका मदरसा पहला है। लिहाजा उनके माँ बाप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। आप देखते हैं मुल्क में हालात कैसे कैसे हालात बर्पा किए जा रहे हैं। ये हमारी कमी है, हमारे बच्चों की कमी है, जो हम शुरू से अपने बच्चों की तरबियत सही से नहीं कर पाते हैं। अब सोचिए, इस माह में जब कोई जुआ खेलता है, जब कोई शराब पीता है, जब कोई अय्याशियाँ करता है, जब कोई गंदे काम करता है, तो यकीनन अल्लाह ताला नाराज़ होता है। और जब अल्लाह ताला नाराज़ होता है तो किसी जालिम को मुसल्लत फरमा देता है। वो जालिम हम लोगों को तरह तरह से शिद्दत पहुंचाता है, तरह तरह के मुसीबतें पहुंचाता है, और आखिरकार हम कहते हैं हम मजलूम हैं, हम मारे जाते हैं, हम सताए जाते हैं, हम काटे जाते हैं, हम पीटे जाते हैं। अजान होती है, नमाज पढ़ने तुम नहीं जाते, सुन्नत को तुम तर्क करते हो, फ़र्ज को तुम तर्क करते हो, गरीब का हक तुम मारते हो, मुसाफिर की देख रेख तुम नहीं करते, यतीमों को तुम सताते हो, कमज़ोरों को तुम सताते हो, और न जाने कितने ऐसे गलत काम तुम करते हो। तो इन सब का हर्जाना, इन सब का भुगताना हमको भरना होगा। अब भी वक्त है, बाज आ जाओ ए हमारी कौम के नौजवानों, ए हमारी कौम के बच्चों, कुरान को सीने से लगा लो, नबी की सुन्नत को अपना लो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पे चलो, यकीनन तुम कामयाब होगे। और मेरे दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसके बाद तीसरा असरा शुरू होगा। आप खूब इबादत करें, खूब रोज़े रखें, जितनी आपसे हो सके उतनी इबादत करें, जितना आपसे हो सके उतना रब के आगे सर झुका करके रोए, गिड़गिड़ाए, हमारे लिए, अपने लिए दुआ करे। अल्लाह ताला ज़ालिम हुकूमत से हमें निजात दे और हमें सच्चे मुसलमानों के फ़हरिस्त में शामिल कर ले। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।